everyone, welcome back to your English video. Today I'll be dealing with grade 8 English chapter 10 The Great Stone Face part 2. In the previous video I have dealt with chapter 9 The Great Stone Face part 1. Okay, so this is a continuation of that chapter itself. Let's see the introduction of this chapter. The Great Stone Face 2 is an extension of lesson 9 The Great Stone Face 1. Ernest, a very simple and unnoticed boy, had grown up to be an old man with white hair. So इस चैप्टर में अर्नेस्ट के बारे में ही कहा है और इसमें ऐसा कहा है कि अर्नेस्ट जो बहुत सिंपल और अननोटिस्ड बॉय था वो विलेज में, वो अभी बहुत ही ओल्ड हो गया, उसकी बाल सब अभी वाइट हो गई. Okay, he has grown old and he has become very wise also. Okay, all the years that brought him here were not useless because he had become so wise that the number of wise thoughts exceeded the number of white hair on his head. और वो इतना वाइस हो गया कि उसके बाल जितने वाइट है उससे भी ज़्यादा उसके थॉट्स थे. वाइट उसके थॉट्स वाइस बने थे, उसके बाल से भी ज़्यादा बाल सब वाइट हो गए, उससे भी ज़्यादा उसके थॉट्स वाइज थे. ओके, सो ही वॉज वेरी वाइज पर्सन नाउ. ही वॉज नॉट अनपॉपुलर एनी मोर. मेनी पीपल केम टू सी हिम and tell stories about one such poet born in the valley who had moved to distant city but had come back to meet Ernest. तो अर्नेस्ट बहुत पॉपुलर आदमी बन गया और लोग उनसे मिलने के लिए अर्नेस्ट के घर आते थे, बातें करते थे, कन्वर्स करते थे. और ऐसे ही अर्नेस्ट को बताया था एक पोइट के बारे में, और जो पोइट जिसकी बर्थ इस वैली में हुई थी और वो फिर वहाँ से चला गया था. अभी वो वापस इसी वैली पे आ गया और अर्नेस्ट से मिलने के लिए, क्योंकि अर्नेस्ट का फेम उस पोइट तक पहुँच गया था. Okay, in the end of the story, the old man's prophecy gets fulfilled as they find the man who bore likeness of the great stone face. और लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो ओल्ड प्रोफेसी जो बताया था कि स्टोन फेस जैसा एक आदमी आएगा, वो बहुत ही सच हो गया, एक्चुअल हो गया, और वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. In Great Stone Face 2 by Nathaniel Hawthorne, Ernest, a very simple and unnoticed boy, had grown up to be an old man with white hairs. All those years made him so wise that knowledgeable and distant men from city came to visit him just to have conversation with him. तो मैंने ये बताया था, ये अर्नेस्ट अभी ओल्ड पर्सन बन गया और अभी वो इतना वाइस हो गया कि पूरे सिटी से लोग आते थे इन अर्नेस्ट से मिलने, बातें करने, कन्वर्स करने के लिए, क्योंकि उसके थिंकिंग, थॉट्स, आइडियाज सब डिफरेंट थे और बहुत करेक्ट भी थे. ही रिसीव्ड देम विद जेंटलनेस एंड काइंडनेस. वो हमेशा काइंड था, जेंटल था, सभी से अच्छे बिहेवियर से बातें करते था. Okay, as he talked to people, his face would brighten and would shine upon others as if he was a mild evening light. और उसके फेस में इतना अच्छा लाइट था कि जो उससे बातें कर रहा था उसको भी पॉजिटिव वाइब्स मिलता था. Okay, that just like his face was a shining star, so that shine also reflects on the person who is talking with him. Okay, तो एक इवनिंग लाइट के तरह थे. The story then introduces us to another son of the valley who moved to distant city, pouring them with his sweet music. और इसी स्टोरी में एक another person के बारे में भी कहा है, वो एक पोइट है. Okay, he kept the great stone face alive in his poem. तो हमेशा वो अपने पोएम में ग्रेट स्टोन फेस की स्टोरीज लिखता था और उसके बारे में लिखता था. Ernest came to know about him as he read the poet's thought in his book. He wished that the poet to be having the likeness of the great stone face. तो ये पोएट द्वारा लिखे गए कविताएं अर्नेस्ट ने भी पढ़ा है. तो अर्नेस्ट के मन में ऐसा विचार था कि ये पोएट को ज़रूर ये ग्रेट स्टोन फेस का लाइकनेस होगा. दैट मीन्स द poet will be having the likeness of the great stone face. When the poet came to know about Ernest, he expressed a strong desire to meet him. जब पोइट ने अर्नेस्ट के बारे में सुना, इतने वाइस पर्सन, इतना बड़ा वाइस पर्सन उसके वैली में है, अर्नेस्ट के बारे में जब पोइट ने ऐसा सुना तो उसको लगा कि उनसे मिलना है.
Thus he comes back to the valley and asks Ernest to give him a night's shelter. और वो अपने वैली में आता है, पोएट अपने वैली में आता है और अर्नस्ट के घर में जाकर पूछता है कि उसको नाइट को शेल्टर देंगे. They talk to each other. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. तो वो दोनों बातें करते हैं और पोइट को ऐसा लगता है कि इससे पहले उसने ऐसे एक आदमी से बातें ही नहीं किया है. इतना अच्छा आदमी है अर्नस्ट. अर्नस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड. और अर्नस्ट को वो पोइट भी इतना अच्छा लगा क्योंकि उसकी बातें में लिविंग इमेजेस थे. उसके पोएम सब बहुत ही लाइव थे. तो अर्नस्ट को वो पोइट भी बहुत अच्छा लगा, पोइट को अर्नस्ट भी बहुत अच्छा लगा. Upon being asked, the poet told him that he was a writer of the book Ernest was reading. तो पोइट ने उसके बारे में बता दिया कि मैं ही एक बुक लिखा हूँ. आई एम द राइटर ऑफ द बुक दैट अर्नस्ट इज रीडिंग. ओके, अर्नस्ट के हाथ में जो बुक था, वो जो पढ़ रहा था, वो बुक ये पोइट ने ही लिखा. Ernest compared poet's features with that of the great stone face, and when they did not match, he became sad. तो अर्नस्ट वहाँ बैठकर क्या कर रहा था, वो अर्नस्ट पोइट का फेस देख रहा था, फिर ग्रेट स्टोन फेस पे देख रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली चाहता था कि ये पोइट वो ग्रेट स्टोन फेस का रिसेंबल करे. मगर क्या हुआ, ही बिकेम सैड. देयर वॉज नो रिसेम्बलेंस बिटवीन द पोइट्स फेस एंड ग्रेट स्टोन फेस. ओके. Upon being asked, the poet told him that he was a writer of the book. हाँ, ये तो खत्म हो गया, sorry. Ernest told the poet that when he read his book, he thought him to be the man that would fulfill the prophecy, but to his disappointment he was not. तो अर्नस्ट ने बोला कि मैं जब आपके पोएम्स, आपके राइटिंग सब पढ़ रहा था, मैं चाहता था कि आप ही हो ग्रेट स्टोन फेस जैसा आदमी. द पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ बेयरिंग रिसेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, as he knew that although his thoughts were great, he had dreams, but those dreams remained dreams, and he himself lacked the faith in his thoughts. तो पोइट ने कहा कि आप मुझ पर ऐसा भरोसा मत रखो, क्योंकि मेरे पोइम्स बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे बहुत ड्रीम्स है और वो सारा ड्रीम्स मैं फुलफिल नहीं कर पाया. ओके, मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो आई एम अनवर्दी. ही सेड दैट आई डोंट डिजर्व टू हैव द रिसेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. It was a ritual of Ernest to speak to his neighbors every evening at the sunset in the open air. तो ऐसा एक रिचुअल था, डेली रूटीन था कि अर्नस्ट डेली इवनिंग अपने नाइबर्स के साथ बैठकर बातें करता था. बोथ men went to the meeting place from where the great stone face was clearly visible. As Ernest began speaking, he shared whatever he had in his mind. तो ये दोनों पोएट एंड अर्नस्ट एक प्लेस में चले गए और वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस बहुत ही अच्छा तरह विजिबल था. एंड दिस मैन स्टार्टेड टॉकिंग वॉट एवर थॉट्स ही हैड इन हिज माइंड. हिज थॉट्स वर सो पावरफुल सिंस दे वर सपोर्टेड बाय ऑल लाइफ फुल ऑफ गुड डीड्स. उसके थॉट्स बहुत ही अच्छे थे, वाइज थे. दोस वेयर नॉट मियर थॉट्स बट द वर्ड्स ऑफ लाइफ. और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही अच्छे काम के लिए, अच्छे डीड्स कर बिताया था, तो उसके बातें भी ज़रूर अच्छे ही होंगे. And the poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler form of poetry that he had ever written. तो ये पोइट बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया अर्नस्ट पर, और ऐसा लगा कि मैंने तो ऐसे एक आदमी के बारे में एक पोएम भी नहीं लिखा है. Okay, his eyes were filled with tears as he realized never had he seen a man so kind and gentle, wise, sweet as Ernest. Okay, Ernest जैसा एक आदमी को अभी तक उससे मुलाकात ही नहीं की है अपने लाइफ में, ऐसा एक आदमी से. So he is such a rare piece. वो अंडरस्टूड हो गया पोएट को. Suddenly he noticed the great stone face with a golden light of setting sun upon it and mist around it. फिर उसने ग्रेट स्टोन फेस पर देखा और वहाँ तब गोल्डन लाइट था, सनसेटिंग टाइम था, इवनिंग टाइम था, और पूरे मिस्ट वो ग्रेट स्टोन फेस पर आ गए थे. ही नोटिस दैट इट रिसेंबल्ड द आईब्रोज ऑफ अर्नस्ट. जब उसने बहुत ध्यान से देखा तो पोइट को ऐसा लगा कि वो आईब्रोज जो ग्रेट स्टोन फेस पर दिख रहा है वो अर्नस्ट की जैसा ही है.
When the poet compared the Ernest's grand expression to the great stone face, he couldn't help but tell everyone that Ernest himself bore the likeness of the great stone face. तो poet ने सभी लोगों से बता दिया कि अर्नेस्ट ही है वो ग्रेट स्टोन फेस, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से poet को ये पता चला. एवरीवन एग्रीड, और सभी लोग बोलने लगे हाँ हाँ अर्नेस्ट ही है ग्रेट स्टोन फेस के रिसेम्बलेंस वाला आदमी. अर्नेस्ट हाउएवर होप्ड फॉर ए मैन बेटर एंड वाइसर दैन हिमसेल्फ टू कम बेयरिंग द रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस. तो अर्नेस्ट अभी भी चाहता था जैसे कि मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा आदमी आएगा, मेरे से भी अच्छा कोई आदमी यहाँ पे आएगा, ऐसा वो चाहता था. ओके, ही होप फॉर दैट. So that's the chapter. Now we have come to the end of the chapter. So who is the person having the resemblance of the great stone face? It is the man Ernest itself. Okay. So I hope you have understood it. Thank you.